भाई गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, लवली मंडे आफ्टरनून। चेक चेक। कैसे हालचाल है सबके? अच्छे हैं? ओके। रे ऑप्टिक्स लास्ट टाइम शुरू किया था, तो आज अपने को उसका सेकंड लेक्चर शुरू करना है। लेट्स ब्रश अप। हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था? रिफ्लेक्शन के साथ हमारा पाला पड़ा था एंड हमने देखा था रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। फिर दो टाइप के कर्व्ड मिरर्स देखे थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। याद रखें, convex mirror always produces a virtual image, virtual, erect and diminished. Concave mirror is possible to obtain a real image. Okay. उसके बाद हमने वो देखा था, क्या बोलते हैं उसको, रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। तो एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। देन वी सॉ मिरर फॉर्मूला 1 by u plus 1 by v। या बट ये कुछ भी यूज करने के लिए वी नीड व्हाट इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के तीन पोस्टुलेट। पहला, ऑल डिस्टेंसेस शैल बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल P of the mirror. So pole P suddenly becomes the most important point for us. सारी गाड़ियां, सारे डिस्टेंसेस हम पोल P से ही मेजर करेंगे। Distances in the direction of light are taken positive. Opposite to the direction of light, distances are taken negative. And heights above the principal axis taken positive, below the principal axis heights are taken negative. Lateral magnification नहीं भूल सकते। Lateral magnification is the height of the image over the height of the object and that is equal to minus v by u. मैंने ये भी बताया था आपको कि अगर m पॉजिटिव है इसका मतलब image is erect. If m is negative, image is inverted. If the value of m, magnitude of m is greater than 1, then the image is magnified, and if magnitude of m is less than 1, then image is diminished. So this was all about mirrors, curved mirrors. अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, concave mirrors के लिए R and F are both negative and convex mirrors के लिए R and F are both पॉजिटिव। ओके, वेरी लवली थिंग्स टू रिमेंबर। फिर हमने रिफ्रैक्शन देखा था और रिफ्रैक्शन में मजा आ गया था देख के। दीज आर टू मीडिया, दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 2 एंड दिस इज योर नॉर्मल। नॉर्मल टेढ़ा तो नहीं है, टेढ़ा है, अब ये सीधा है। दिस इज द इंसिडेंट लाइट, ये आई एंड थोड़ी सी रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगी। दिस एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल is called angle of incidence and the angle made by refracted ray with the normal is called angle of refraction. Snell's law, the most important law we saw last time, sin theta 1 by sin theta 2, the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is n to 1 and that is constant. N to 1 is the refractive index of medium 2 with respect to medium 1. I think I told you n21 is n2 by n1. Similarly, if anyone tells you n12, that would be n1 by n2. जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव and not to forget one of the most favorite forms of Snell's law, n1 sin theta 1 is n2 sin theta 2. Okay, this was the modified form of Snell's law. और फिर हमने ये देखा था कि the medium which has a lesser refractive index, lower refractive index is called rarer medium and the medium which has a higher refractive index is called a denser medium. So if I have air and water here, air is the rarer medium and water is the denser medium. Then we saw lateral shift. What was lateral shift? Anybody want a lateral shift? Whenever light enters a glass slab, when finally it emerges out, it emerges parallel to the original ray but shifted by a certain amount. That shift is called lateral shift. और हमने एक इक्वेशन भी तलब किया था उसके लिए, यूज करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिया थे आपको। x is equal to t sin theta 1 minus theta 2 over cos theta 2. Here t was the thickness of the slab,
theta 1 was the angle of incidence or angle of emergence. They both will be same according to the geometry of the figure. And theta 2 is the angle of refraction. तो ये सारी चीजें हमने देखी थी, और एक और ये देखा था कि when light goes from rarer to denser medium, it bends towards the normal. We called it RDT. Light bends from rarer to denser. If light goes from rarer to denser medium, it bends towards the normal. And if light goes from denser to rarer, it bends away from the normal. तो इतना सारा काम हमने देखा था लास्ट टाइम. जस्ट एक नजर मार लो. आगे बढ़ते हैं और आज का कारवां शुरू करते हैं. मैंने आपको यह बताया था लास्ट टाइम कि अगर आप एक मीडियम में से आप अगर अपने बाल्टी में पानी भरा है और उसके अंदर टम्बलर है, तो इफ यू लुक एट द टम्बलर, दैट टम्बलर विल अपीयर लिफ्टेड अप. सिमिलरली फिशिंग करना, फिश को हंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आप बाहर खड़े हुए देख रहे हैं, फिश दिख रही है आपको, पर आप जैसे हाथ डालते हो उसको पकड़ने के लिए, आपके हाथ में कुछ नहीं आता. क्यों? क्योंकि फिश एक्चुअली जहां दिख रही है वहां है नहीं, फिश कहीं और है. तो ये अपेरेंट पोजीशन है फिश का जहां आप हाथ डाल रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट आपको वो फिश मिलेगी नहीं. तो सर वो फिश एक्चुअली है कहां? ओके, लेट अस लुक एट सम केसेस ऑफ रिफ्रैक्शन. We'll look at the first case where we say object in denser medium and being viewed from the rarer medium. So this is the instance that I was talking about. बंदा बाहर खड़ा है एयर में और वो फिश को देख रहा है जो कहां है? पानी में. ओके, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट. तो थोड़ा सा जगह कम पड़ गया. ये बंदा खड़ा है अपना, ओके, एंड वो फिश को देख रहा है. 2 आंखें हैं उसकी. एंड यहां से आया रिफ्रैक्शन, एंड यहां है एक्चुअली फिश. कैन यू सी दिस मच? दिस कैन यू सी दिस? So this is the real position of the fish. पर बंदे को फिश यहां नजर आएगी नहीं, बंदा तो सीधा ही देख सकता है, तो उसको फिश कहां नजर आएगी? मैं ये लाइन को ना सीधी खींचता हूं और यहां से थोड़ा ऊपर खींचता हूं, उसको बंदे को फिश कहीं यहां नजर आएगी. ये है फिश की अपेरेंट पोजीशन, और वो यहां हाथ डाल के उसको छूने जाएगा, तुझे छूने को दिल करे, पर यहां तो दिखेगा ही नहीं, मतलब आएगा ही नहीं कुछ हाथ में, क्योंकि फिश यहां पे है ही नहीं. फिश तो यहां है. सो अगर आपको फिश रियलिटी में कहां है वो देखना है, तो आपको नजरें बेंड करनी पड़ेगी, जो नहीं हो सकता. इंसान की बात नजर सीधी होती है, सब सीधे ही देख सकते हैं. तो उसको फिश नजर आएगी यहां पे, जो ओरिजिनली है कहां पे? यहां पे. तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है ना? रुको, दिस इज हाई. सर व्हाट इज हाई? हाइट ऑफ द इमेज या डेप्थ ऑफ द इमेज फ्रॉम द बाउंड्री, एंड दिस आई विल कॉल इट हो. व्हाट इज हो? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट है, रियल ऑब्जेक्ट, ये अपेरेंट पोजीशन है उसका. तो इन दोनों के साथ कोई रिलेशन है? कोई है ना, बिल्कुल है. ये रेरर मीडियम है ना, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन रेरर, एंड बिकॉज दिस इज डेंसर मीडियम. अच्छा, रेरर मतलब ये एयर है, एंड मछली तो जल की रानी है और जीवन उसका पानी है, और ये है एन डेंसर. बाय ज्योमेट्री आई हैव डिराइव्ड एन इक्वेशन. उन्होंने टेक्स्ट बुक में इक्वेशन दिया नहीं है, हाँ हमसे उसका यूज मांगा है. ये उनकी करामात है, वो हमसे बहुत कुछ चाह लेते हैं एक साथ. तो ध्यान से देखिए, इफ ऑब्जेक्ट जो मछली को देख रहे हैं, फिश, इज इन डेंसर मीडियम, जो वाटर है, देन इट विल अपीयर लिफ्टेड अप.
हमेशा लिफ्टेड अप तो नजर आएगा ही, एज सीन इन द डायग्राम। हियर हाई इज द डेप्थ या अपेरेंट डेप्थ जो हमको लगती है, हो इज द रियल डेप्थ। नाउ हियर कैन यू सी हाई इज लेस देन हो, हाई is less than ho, and as a result I give you a lovely equation. Therefore high by ho is n rarer over n denser. My goodness, beautiful equation this. High by ho is n rarer upon n denser. As you can see original fish यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे ये उसकी apparent depth, ये उसकी real depth. Apparent depth is lesser than real depth, high less than ho, so high by ho is n rarer by n denser. आप बाल्टी में नीचे देखें तो आपको उसका जो बेस होगा वो भी लिफ्टेड अप नजर आएगा, उसी तरह हर चीज लिफ्टेड अप नजर आएगी। आप एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में देखें। नाउ somebody asked me this question, सर अगर फिश अपने को देखती है तो, है ना, एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, तो हम कैसे नजर आएंगे उसको? तो हम भी लिफ्टेड अप ही नजर आएंगे। लेट मी शो दैट टू यू। आप इसको एक बार नजर मार लो। कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ, दिस डायग्राम? आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ न्यू डायग्राम where object will be in rarer medium and it will be viewed from the denser medium. So object in rarer medium मतलब हम, and viewed from denser medium. ओके, अब इस बार फिश अपने को अटेंशन दे रही है, तो आप लोग रेडी रहे फिश का अटेंशन लेने के लिए। ये फिशी है, इट्स क्वाइट फिशी। और अरे लाइन मारने का चक्कर बहुत ही डेंजर है, मारना कहीं और होता है, लग कहीं और जाती है। ये लाइट आई, and do I need to tell you this is water and this is air? Light is going from denser to rarer. You agree it will bend away from the normal? ये ओरिजिनल बंदा है, ये रियल पोजीशन है आंखों की। वो फिश तुम्हारी आंखों से आंखें मिला रही है, नजरों से नजरों को मिला, ये रियल है। पर फिश को क्या लगेगा? तुसी कहा हो महाराज, यहां से उसको आपकी आंखें यहां नजर आएंगी। ये है आपका आंखों का अपेरेंट पोजीशन। और आंखों की गुस्ताखियां जो है, माफ हो साहब, बराबर, उसको लगेगा, फिश को लगेगा कि तुम यहां हो, पर एक्चुअली तो तुम यहां हो। ओके, तो और हाई कर लेते, आ जाओ। ये रियल पोजीशन है तो ये है हो, एंड ये अपेरेंट है तो ये है हाई। सो एंड दिस इज वाटर, तो यहां पे आएगा एन डेंसर, एंड ये एयर है क्योंकि हम तो बगैर एयर के सरवाइव ना कर सकें। ओके, तो what do you think will be the change in the idea here? So if object मतलब we, the eye is in the denser medium मतलब air, then it will appear lifted up. हमेशा lifted up तो रहता ही है। If object human eye is in rarer medium मतलब air, then it will appear lifted up. High is apparent height, ho is real height. Here what is greater than what? Isn't high greater than ho? And because high is greater than ho, equation का उलट पुलट हो जाएगा। And what is a उलट पुलट है? तो high by ho, anybody can tell me what might be? मैंने सिर्फ कहा था उलट और पलट हो जाएगा। लास्ट केस में फिश को देख रहे थे जहां हाई लेस देन हो था,
सो हाई बाय हो वॉज एन रेयरर बाय एन डेंसर, बट यहां पे हाई इज ग्रेटर देन हो, सो हाई बाय हो विल बी एन डेंसर ओवर एन रेयरर। बस आपको इतना पता चलना चाहिए कि हाई बड़ा है या हो, फिर आप इक्वेशन में ऊपर नीचे लगा लो। यहां क्योंकि हाई बड़ा है तो ऊपर बड़ी चीज ही आएगी, डेंसर वाली, और लास्ट केस में हाई छोटा था, हो बड़ा था, हाई छोटा होने से एन रेयरर ऊपर आ जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस मच? एनी प्रॉब्लम? यस सर। अच्छा, वैसे डायग्राम सब दिए नहीं है बट मैं हमेशा बना देता हूं यार, अच्छा रहता है। दूसरी एक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में बताऊं आपको, तो यू नो दिस हैपेंस, या कैश को ऐड करो ना। ऑलराइट, कर देते हैं जी, आपका हुक्म। Okay, as I told you, there is a case of atmospheric refraction wherein atmosphere की refractive index हम हमेशा लेते हैं सर एयर वैक्यूम सेम ही होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। एटमॉस्फेयर एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.00029, इट्स नॉट एक्चुअली 1, इट इज नॉट एग्जैक्टली 1, एंड एज अ रिजल्ट थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन एयर में भी होता है। तो ये कैसे दिखाई देता है? सो दिस इज नंबर 2, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये अर्थ है और ये उसका एटमॉस्फेयर है इर्द गिर्द, ये तुम खड़े हो एंड ये होराइजन है। सनराइज होने वाला है एंड सन एक्चुअली होराइजन के नीचे है। ओके, ये सन है, रियल पोजीशन ऑफ द सन, बट ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये लाइट घूम 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 के आएगी आपके आंख में और आपकी आंखें सीधा ही देख सकती हैं, तो आपको जो सन यहां है वो सन ऊपर दिखाई देगा। दिस इज द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन। मतलब तुमको लगेगा सनराइज हो चुका है, पर ना मुन्ना, सनराइज में 2 मिनट बाकी है अभी। सन होराइजन के, ये होराइजन है, इंग्लिश में इसको होराइजन कहते हैं, क्षितिज। सन इज बिलो द होराइजन, बस अभी ऊपर आने वाला है, उसको 1-2 मिनट है, पर आपको ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये सन की रेज यहां तक पहुंच गई, आपको सन ऊपर नजर आने लगा, आपको लगा सनराइज हो गया है। ये सनसेट के टाइम पे भी होता है। सन होराइजन के नीचे चला जाए ना, उसके 2 मिनट बाद तक आपको होराइजन के ऊपर नजर आता रहेगा, एंड 2 मिनट बाद तो वो और नीचे चला जाएगा, तो फिर आपको नजर नहीं आएगा। You understand? So this is due to the case that refractive index of air, the atmosphere, 1.00029, and as a result, ये भी है कि 360 डिग्री घूमने में 24 आवर लगता है, तो थोड़ा सा हाफ अ डिग्री का वो है, बेंडिंग है। सो देर इज अ बेंडिंग ऑफ हाफ अ डिग्री, देर इज एन एंगल of half a degree which corresponds to roughly 2 minutes. A simple mathematics है, 360 डिग्री 24 आवर्स, तो 1 डिग्री कितना फाइंड आउट कर लो, 1 डिग्री इज करीबन 4 मिनट, तो which corresponds to around 2 minutes. Thus sun is seen 2 minutes before sunrise, and it is also seen 2 minutes after sunset, because light rays have to travel distance and they get bent, and आपकी आंखों तक अब तक वो रेस पहुंच रही है और आपको सीधा नजर आता है, इसलिए सन आपको 2 मिनट सनराइज से पहले दिखने लगता है और 2 मिनट सनसेट के बाद तक वो दिखता रहता है। ऑलराइट, तुम महाबलेश्वर जाओ और सनसेट पॉइंट पे खड़े रहो, सनसेट का टाइम उन्होंने लिखा है 6:30, आप 6:22 पे पहुंच गए और जगह 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 नीली जगह आप देखते रहे और 6:32 तक आपको दिखता रहा सनसेट, जबकि सनसेट तो हो चुका है,
6:30 को सन गया नीचे, बट आपको उसका आभास हो रहा है और 2 मिनट तक, तो 6:32 तक आप प्रेम से सनसेट एंजॉय कर सकते हो। फिर अपने अपने घर निकल लेना, तो बहुत भीड़ हो जाएगी फिर। सो sun is seen 2 minutes before sunrise as well as 2 minutes after sunset. This is due to atmospheric refraction. Okay, so this was what I wanted to tell you about refraction. I want to do numerical number 3 please. वो हाई बाय हो के आइडिया पे बेस्ड है, और न्यूमेरिकल 4 भी करना है, तो आप लोग आओ मेरे साथ। न्यूमेरिकल 3 is at page number 345. If you want, I can take this off now. You can have a look. So I've got the data out here. मेरे पास ये वेसल है जो पानी से भरा हुआ है, वाटर है अंदर, एंड वाटर टिल अ हाइट ऑफ 12.5 सेंटीमीटर। ये वाटर बीच में आ गया, और यहां पे कहीं पे एक नीडल रखी हुई है, वो डेंजर नीडल है ये। Isn't it but obvious कि आप जब देख रहे हो ऊपर से, या ऊपर से तुसी नजर मार रहे हो, तो आपको वो ऊपर नजर आएगी। कहीं यहां पे लाल कलर में बना उसकी इमेज, ये है तुम्हारी नीडल। ये नीडल की इमेज कितने पे नजर आ रही है आपको? ये हाई है 9.4 सेंटीमीटर पे, हो दिया हुआ है 12.5, हाई दिया हुआ है 9.4। भाई कैन यू सी हियर हाई इज लेस देन हो, हियर हाई इज लेस देन हो। सो इक्वेशन क्या बन जाएगा जी? हाई बाय हो इज एन रेयरर बाय एन डेंसर। सो हाई बाय हो, भाई ये रेयरर मीडियम कौन सा है? एयर है ना, तो एन एयर ओवर एन वाटर। मेरे पास सब इक्वेशन है मालिक। सो हाई कितना? 9.4 बाय 12.5, दोनों सेंटीमीटर में, इसलिए कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं। एयर का मैं 1 ले लेता हूं अपॉन एन वाटर। आई एम श्योर somebody somewhere will give me an answer. Anybody giving me an answer? 1.329. तो करीबन 1.33 इज गुड, बराबर। अब पानी की जगह दूसरा लिक्विड डाल दिया, उसके भी ओरिजिनल हो 12.5 ही है। नाउ वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड, वाटर रिप्लेस्ड बाय लिक्विड। तो अगेन हो दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर, हाई फाइंड करना है पहले। एन एयर दिया हुआ है 1 और एन लिक्विड दिया हुआ है 1.63। अगेन सेम ओल्ड, हाई बाय हो is n rarer by n denser, which is n air by n liquid. So anybody giving me high? I don't want no high. 12.5 by 1.63, anyone? 7.668. 7.668 means 7.67 करीबन। तो उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है, मतलब इसका मतलब समझ में आया आपको? अब इमेज पहले जो यहीं पे थी, जो पहले यहां पे आ रही थी, अब पानी निकाल दिया, अब लिक्विड भर दिया कोई, नीडल अभी भी यही है। अब वो कितने पे नजर आएगी? करीबन 7.67 कहीं यहां पे। तो अपने को पहले अपना व्यूइंग कितना था? 9.4। कितना ऊपर ले जाना पड़ेगा? सो डिस्टेंस टू बी मूव्ड, डिस्टेंस इज तुम्हारा, इसको हाई डैश कहते हैं, बराबर, हाई डैश। तुम्हारा ओरिजिनल हाई कितना था? 9.4 माइनस हाई डैश 7.67, एनी 1.73. 1.73 centimeter. Is that checkable? Is that the correct answer? Anyone checking? वादर, ये हो गया आपका न्यूमेरिकल 9.3। न्यूमेरिकल 9.4 करने जा रहा हूं। इसमें थोड़ा सा आपका लॉग टेबल, नेचुरल साइंस वगैरह की जरूरत पड़ेगी। लेट अस सी
मैंने तो टेबल ला के रखा हुआ है, आपने देख लिया। तो 9.4 आ रहा है आपके स्क्रीन पे अभी। कौन बनेगा करोड़पति में? पब्लिक स्क्रीन पे देख रही, क्या दिखाई दे रहा है? और सबको आंसर पता ही होता है, करोड़पति है सारे सबके सब। ओके 9.4। अच्छा, कुछ डायग्राम्स दिए हुए, सीरीज ऑफ डायग्राम्स। Figure 9.34 A and B show the refraction of an air of a ray in air incident at 60 degree with the normal glass air, water air. Predict the angle of refraction in glass when the angle of incidence is blah 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 blah. Okay, no problem. अच्छा, एक छोटा सा चेंज है। अगर आंसर ऐसा चाहते हो जो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, तो जो सेकंड केस है ना, उसमें वाटर में जो 47 डिग्री बना रहा है वो एक्चुअली 47 नहीं 41 है। मैं प्रूफ कर दूंगा आपके सामने, तो अभी फिलहाल कुछ मत कीजिए, उसको हम देखेंगे आगे। सो द फर्स्ट केस, केस 1, ये आपका स्नेल्स लॉ लगाने हर जगह। दिस इज 60 डिग्री एंड दिस इज 35 डिग्री। दिस इज ग्लास एंड दिस इज एयर। I hope you seriously remember कि ये मीडियम 1 है। जो इंसिडेंट होता है ना मीडियम, वो मीडियम 1 होता है, और जिसमें रिफ्रैक्ट होता है वो मीडियम 2 होता है। एनीबडी रिमेंबर स्नेल्स लॉ? मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मुझे पता था कि तू यही बोलेगा। स्नेल्स लॉ sin थीटा 1 by sin थीटा 2 is n2 1 मेरे भाई, विश्व है मेरे भाई, है ना? हाँ। और यहां पे 2 कौन सा मीडियम है? ग्लास। 1 कौन सा मीडियम है? एयर। तो isn't this NGA, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर? तो मुझे NGA मिल जाएगा। कितना है? साइन, हाउ मच इज थीटा 160 अपॉन साइन 35। भाई साइन 60 इज 0.866 एंड साइन 35 0.6 के आसपास, 0.55 के आसपास, ऐसा कुछ। साइन 35 0.5736। आप एक छोटा सा काम ये करें कि मुझे ये डिवाइड करके वैल्यू ला के दें। 0.866 डिवाइड बाय 0.5, 1.4 या 1.511। ओके, एंड अब सेकंड, मैं जगह की बचत करूंगा। उप्स, सेकंड में बी में बगैर डायग्राम के तो कुछ नहीं हो सकता। फिर से एयर और वाटर है, इस बार एयर और वाटर है। ये एयर एंड दिस इज 60 एंड ये मैंने 41 लिया है, ध्यान से देखना, ये वाटर। ओके, मैं 41 लेके इसको खत्म करने की कोशिश करता हूं। अगेन स्नेल्स लॉ। अच्छा, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। सो साइन थीटा 1 बाई साइन थीटा 2 इज n21। तो साइन थीटा 1 कितना है? 60 बाई साइन 41। 2 कौन सा है? वाटर, और ये एयर, NWA। तो एनीवन गुड इनफ? साइन 41 एब्सोल्युटली सर। 1.1 1.2 के आसपास होना चाहिए। 1.319। यू एब्सोल्युटली श्योर बड़ी? Yes, sir. Okay, and now finally C, let us see C में क्या है जी। हमको ये पानी है, पानी तो पानी है, पानी जिंदगानी है, 45 डिग्री, और ये गिलास, एंड दिस इज आर। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे हमको आर फाइंड करना है। ओके, so that's going to be an issue now. Okay, भाई याद रखें, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2,
स्नेहल क्या कह गए थे आपसे? साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2 इज हाउ मच? n21, यही कहा था ना उन्होंने? अच्छा, तो n21 क्या होगा सर? एनीवन? 2 क्या है? ग्लास, ये वाटर, n g w, इज दिस अग्रीएबल? 2 कौन सा है? ग्लास, 1 कौन सा है? वाटर, तो n21 विल बी n ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। सर हमको तो n ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कहीं भी नहीं मिला। बट चचा, कैन आई राइट n ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर एज n ग्लास ओवर n एयर, अच्छा, इनटू n एयर over n water? Can I write that? Because what is n glass water? I'm sure you remember n21 was n2 by n1, so this is n glass by n water. Can I write n glass by n water? मैंने na चिपका दिया यहां पे, so n glass by n air into n air by n water. How much is n glass by n air? Isn't it nga? इंटू ये कितना है? Na बाय एन वाटर। सर पर हमारे पास Na वाटर नहीं है। अरे यार तुम लोग भी है ना, कमाल करते हो। कैन आई राइट Na वाटर एज 1 बाय n वाटर एयर? हा, देखा मैंने क्या किया? मैंने n ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर को n ग्लास बाय n वाटर लिख दिया, फिर n ग्लास बाय n वाटर की जगह मैंने Na मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। n glass by n air, isn't it n glass with respect to air, and n air by n water is n a with respect to water, but मेरे पास ये नहीं होने से मैंने पलटा दिया, तो 1 by n water with respect to air. Do you understand this? Sure? Yes, sir. And incident angle कितना है? 45, and ये है sin r. I think I have got all my values up till now. Sin r, अच्छा मैं वैल्यूज डाल देता हूं फिर बात करता हूं सारी। साइन 45.707 एन ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना आ रहा है? 1.511 1.511 अपॉन एन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। मुझे इसको उड़ाना पड़ेगा एटलीस्ट, तो जाके काम होगा। ये ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना कोई? ओके, सो भाई एनीबडी हैज फाउंड आउट सम वैल्यूज और समथिंग? साइन आर ऊपर चढ़ गया 0.707 इंटू 1.319 डिवाइड बाय 1.511। एनीवन? 0.617. 617 व्हाट? 0.617 वॉट बड़ी। तो आई थिंक 38.1 के आसपास मिल रहा है मेरे को। चेक कीजिए, इज दैट द फाइनल आंसर? इज एनीवन चेकिंग? सो आर इज करीबन मैं ये कहना था आपसे कि अगर आप इस जगह 47 यूज करते हो तो साइन 40, यार ग्रेविटी आज जालिम है। साइन 47 इज 0.7314, और फिर ये नहीं आएगा तो इसके नीचे कुछ और चला जाएगा, यहां कुछ और आ जाएगा और आंसर 38 डिग्रीज नहीं सेट होगा। सो इवन दे वांटेड टू राइट 41, बट मिसप्रिंट की वजह से यहां 47 लिख दिया। सो नाउ सिंस आई हैव प्रूव्ड इट, you can very well write 41 degree. Okay, so this is how the cookie is crumbling. Have a look at it. Shall I take it off? Okay, अब आगे चलते हैं एक नए फिनोमिनन की ओर। मैंने आपको बताया था यार कि इफ लाइट गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। What happens if light goes from denser to rarer? अच्छा, away from the normal है। ओके, तो भाई मैं कुछ ऐसा पेश करने जा रहा हूं जिसमें
लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। ये टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हम नाम देते हैं TIR। भाई तीर नहीं है ये TIR है ये। ओके भाई, तीर और तलवार। भाई लाइन सीधी लग रही है? ठीक है, लाइन सीधी लग रही है ना, कि नहीं लग रही है सर? आगे से मुड़ गई। ओह, आगे एक मोड़ आया है, उत्थे दिल छोड़ आया। अगर इतना रखूं तो सीधी है? सर अरे यार, तू तो यार नाक के साथ ही जुड़ गया है। ये भी ठीक है? बस बस बस, तुम्हारी दुआ चाहिए बस। सपोज मेरे पास ये डेंसर है और ये रेयरर है, आपको पकड़ना है तो वाटर एयर पकड़ सकते हो। दिस इज द डेंसर मीडियम जिसमें दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। ओके, अब इसको अलग अलग पॉइंट पे क्या आलम होगा इसके साथ में बताने जा रहा हूं। सपोजिटली यहां से मैं सीधी भेजूं, इस पॉइंट से क्या होगा आपको तो पता ही है ना, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, थोड़ी बहुत रिफ्लेक्ट होती है और थोड़ी रिफ्रैक्ट हो जाती है। मेजर पार्ट रिफ्रैक्ट हो जाता है। यहां पे भी रिफ्रैक्शन होना ही है। तो ये लाइट अगर सीधी जाएगी, ये सीधी में हमेशा लफड़ा है। सर क्या बताना चाह रहे हो? ये लाइट सीधी गई तो यहां से थोड़ी बहुत वापस आई, ये रिफ्लेक्टेड वाली है और मेजॉरिटी पार्ट बाहर रिफ्रैक्ट हो गया। कोई बेंडिंग वेंडिंग कुछ नहीं, क्योंकि सीधा जा रहा है। अब अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर लूं बोले तो, सपोज ये ओवन पे, कैन यू सी दिस ओवन? ये मैं यहां पे नॉर्मल मार रहा हूं, क्योंकि बगैर नॉर्मल के तो एबनॉर्मल लगेगा ना। सपोज इस पे ये लाइट गई, तो तेरी आज ये लाइनों का लफड़ा होने वाला है। कैन यू सी? छोटा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो छोटा सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। कैसा रिफ्रैक्शन होना चाहिए? टुवर्ड्स द मीडियम या आगे? मेरे को लाइन कतई अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अपनी लाइन है तो अपने ये आ जाना, मैं लाइन की जान ले लूंगा। ये आई है और सीधी जा रही थी पर टेढ़ी हो गई। कैन यू सी? दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, अगर थोड़े और आगे से देखा जाए, लेट अस से O2 से, तो क्या होगा आलम? कैन यू सी? O2 तक जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, सर नॉर्मल तो बनाएंगे जी नॉर्मल, और फिर मचाएंगे। थोड़ा आगे से लेते हैं भाई, पूरा जहां हमारा यार है ना। नॉर्मल ठीक लग रहा है? चलो, फॉर फर्स्ट टाइम इन लाइफ नॉर्मल ठीक है, ठीक ही है ना। हाँ, अब सपोज यहां से, ये तो सोर्स ही है, यहां से मैं लाइन मारूं, डू यू एग्री? एंगल बढ़ गया इंसिडेंस का। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, नो डाउट, नो डाउट सर। पर इतनी बड़ी लाइन मारोगे कैसे? हा, क्या बात है, बहुत ज्यादा ही बड़ी हो गई भाई, अभी लफड़ा होने वाला है। आई डैश, तो ये भी, सॉरी जेंटलमैन, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। इतना बड़ा तुम हैंडल नहीं कर पाओगे और मैं भी हैंडल नहीं कर पाऊंगा, बराबर है। तो थोड़ा सा छोटा लाइफ में, थोड़ा सा छोटा है ना। आप लोगों को मैं जानता हूं आपको बड़े अच्छे लगते हैं, बट थोड़ा फिलहाल छोटा हैंडल कर लो। अरे मुझे रूलर लेके बैठना चाहिए था, नहीं इतना बड़ा स्केल भी कहां से लावे। पेपर पे अच्छी बन जाती है। ये तुम्हारा आई डैश, एंड सीधा नहीं जा सकता तो थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये आपका आर डैश। आपने देखा इधर से बढ़ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया। यू विल बी सरप्राइज्ड, एक पॉइंट आएगा, विल कॉल इट O3, जिस पर सिचुएशन ऐसी हो जाएगी
कि ये इतना बड़ा हो जाएगा कि अब light will not come out in this medium but it will skim the surface. Can you see? ये रिफ्रैक्टेड रे अब रिफ्रैक्टेड रे बाहर नहीं आ रही है पर सरफेस पे स्किम कर रही है. इन शॉर्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हियर is 90 degree. This angle of incidence is called IC, which is known as critical angle. बराबर, this is known as the critical angle. So the angle of incidence, ये लाइन टेढ़ी है ना? सर चलेगा। कितना कितना सम्मान है तेरा मेरे लिए. तू चाहता है कि मेरे को मेहनत ना पड़े. माय गॉड, ध्रुवील आंखों में आंसू आ गए मेरे यार. है जी, ये बेटर नहीं लग रहा है बेटा? क्या लाइन मारा है. सो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री एंड इसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री. तो स्नेल्स लॉ लगा दिया जाए अगर दिक्कत ना हो तो. अच्छा, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है. एनीबॉडी? साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा 2 इज n21. अच्छा, यहां पे थीटा 1 कितना है? यहां थीटा 1 है IC एंड थीटा 2 कितना है? 90. सो साइन IC बाय साइन 90 इज n21. How much is sin 90? 1. So sin IC is n21. Can you see this? This is the angle of incidence and this is the angle of refraction. So sin IC by sin 90 is n21. Or you know what is n21? Isn't this n2 by n1? एंड कुछ गड़बड़ है क्या? नहीं, गड़बड़ नहीं है, कतई गड़बड़ नहीं है. अगर मैं इसको एयर बोलूं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर की कितनी आएगी? 1. इफ n2 इज एयर तो 1 आता है. तो 1 by n1 साइन IC. और ये बहुत जरूरी है, sin IC is 1 by n या n is equal to 1 by sin IC. नेचुरल क्वेश्चन आपके माइंड में उठ रहा है, मैं जानता हूं कि सर अगर मैं IC से भी बढ़ा दूं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आलम होगा? बेटा तुझे पता नहीं अब तक. अगर तू एंगल ऑफ इंसिडेंस IC से भी बढ़ा देता है तो व्हाट विल हैपन. मैं डायग्राम नया नहीं बनाऊंगा, डोंट वरी. आप लोग टेंशन में आ गए कि क्या होगा. देखा, आजकल छोटी लाइन मारने में भी बड़ी दिक्कत है. सर पहले नॉर्मल. तो अगर तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस IC से भी बढ़ गया, यू विल बी सरप्राइज टू नो न रे रिफ्रैक्ट होगी न मीडियम की बाउंड्री पे आएगी, but very surprisingly it will come back into the same medium. All energy, all light coming back into the same medium. This will happen only if the angle of incidence becomes greater than IC. So this is your incident ray and this is your totally internally reflected ray. Isn't this surprising? स्नेल ने बोला था जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए तो वो बेंड होती है, बिल्कुल मिलती है. बट ये देख के ऐसा लगता है कि जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे में जाने लगती है और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस IC से बड़ा हो जाता है तो वो इस मीडियम में आती ही नहीं, उसी मीडियम में वापिस एंटर हो जाती है
This phenomenon is called total internal reflection. Look at the diagrams once. एकदम खतरनाक चीज है ये. रिफ्रैक्शन एब्सोल्युटली होना चाहिए था, इसमें हुआ, इसमें हुआ, इसमें हुआ, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस एक लेवल पे आ जाने के बाद फिर रिफ्रैक्शन नहीं होता. फिर लाइट या तो अगर क्रिटिकल एंगल है तो इट विल मेक एंगल रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, या फिर अगर क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया तो इट विल कम बैक इनटू द सेम मीडियम. ये होने के लिए two conditions have to be met. The first condition, light has to go from denser to rarer medium. So the first condition is that light has to go from denser to rarer medium, and second condition is that the angle of incidence has to become greater than critical angle. ये दो conditions meet हो जाएं तो ही total internal reflection होता है. and total internal reflection के लिए ये क्रिटिकल एंगल के लिए 1/n, या यू कैन ऑल्सो यूज दिस इक्वेशन ऑल्सो, साइन आई सी इज n/1. ये भी एक अच्छा इक्वेशन है, वॉट एवर यू थिंक फिट. तो साइन आई सी को फाइंड करने बोले तो वो ये हो जाता है. इसका यूजेज बहुत सी जगह पे होता है, एंड लेट मी शो सम थिंग्स टू यू which you have already seen in your lives before. Just have a look at this and I'll rub this off. It's a very lovely diagram. My God, am I capable of drawing this lovely diagram? No idea. Okay, I'm taking this off. So, one of the most commonly seen examples of total internal reflection is a mirage. Have you heard what is a mirage? Hot summer afternoons में या इन डेजर्ट रीजन्स हमको कभी कभी, अभी गर्मी में आप हाईवे से जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, थोड़े आगे आपको एक गाड़ी नजर आती है जाती हुई और उसके नीचे उसका इमेज नजर आता है, तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि वहां पे शायद पानी है जिसमें उसकी इमेज नजर आ रही है, पर जैसे ही थोड़ा आगे जाते हो वो चीज गायब हो जाती है. सो हॉट डेजर्ट रीजन्स में भी ट्रैवलर्स चलते हैं, उनको एक पेड़ दिखता है, उसके नीचे उसकी इमेज दिखती है, अरे माय गॉड पानी आया, बेचारे पानी के लिए तो तरस रहा है, तो पानी आया, वो वहां चलता है, कुछ नहीं होता, उसको लगता है ओएसिस होगा, बट कुछ नहीं होता. दैट इज व्हाट इज अ मिराज. लेट मी शो हाउ दैट हैपेंस. सो एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. द फर्स्ट इज अ मिराज. नाउ व्हाट हैपेंस इज, you have to know this. Now refractive index of the atmosphere is inversely proportional to the temperature. So that is n is inversely proportional to temperature. दिन के टाइम पे ग्राउंड बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, हवा ठंडी होती जाती है. तो ग्राउंड जो बहुत ज्यादा गर्म है, टेम्परेचर हाई है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी? लो. सो एयर नियर द ग्राउंड is hotter, so it is less, it has less refractive index, that is it is rarer medium. अब एक डायग्राम के जरिए देख लेते हैं क्या हो रहा है. ये डायग्राम है, फिर से लाइन टेढ़ी है, ये सीधी लग रही है, मेरे को तो सीधी लग रही है सब, है ना. लाइन के मामले में आप लोग ज्यादा वो है, आपको सब पता चलता है लाइन कितनी अच्छी होती है. ये मेरे पास एक ट्री है, इधर नियर द ग्राउंड, डू यू अग्री टेम्परेचर हाई है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम. सो टेम्परेचर हाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम. ऊपर जाते जाते यहां पे टेम्परेचर कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई. आई एम फोकसिंग ऑन दीज 2 पॉइंट्स. यहां दिस इज अ रीजन ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड दिस इज अ रीजन ऑफ लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स.
एंड बंदा कहीं यहां खड़ेला है, खड़ेला है, बैठेला है, जो भी है, ओके। और लाइट अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस अगर सब लेयर्स का एटमॉस्फेयर यूनिफॉर्म होता ना तो आपको ये सीधा ही नजर आता, रुप रुप, कोई दिक्कत ही कोई नहीं है। बट अब क्या हो रहा है, सारे के सारे जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं दे हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। सो इस वाले की ज्यादा है, फिर इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम, इससे कम। सो कम, आई विल शो यू। लाइट जैसे ही आई, आने दो उसको, आने दो, वो सीधी नहीं उतरेगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो लाइट यहां आनी चाहिए थी, बट उसकी जगह वो अवे 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 अवे, और यहां पे आके इट विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और बंदे की आंख में वो लाइट आएगी। पर बंदा तो इंसान है, वो सीधा ही देख सकता है, तो वो सीधा देखने की फिराक में छोटा हो गया बंदा। अब उसको झाड़ तो नजर आ ही रहा है क्योंकि भगवान ने आंखें दी है, झाड़ इतना बड़ा नजर आएगा, पर झाड़ के नीचे उसको उसका एक हल्का सा रिफ्लेक्शन भी नजर आएगा। एंड क्योंकि वो दोनों को देख रहा है, वो झाड़ भी देख रहा है, उसके नीचे उसका रिफ्लेक्शन भी देख रहा है, तो उसको लगेगा कहीं यहां पे कोई पानी का सोर्स है जिसका रिफ्लेक्शन, जैसे तालाब के किनारे, नदी के किनारे आप बैठे हो तो ऊपर का रिफ्लेक्शन नीचे नजर आता है ना, वैसा सेम टू सेम वो भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। ये प्योर है, ये हल्का है, और ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अलग अलग लेयर्स की रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस अलग अलग है। एज ए रिजल्ट लाइट बेंड्स अवे 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 अवे, और यहां पे आके इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है एंड बंदे की आंख में रे जाती है, ड्यू टू विच ही सीज अनदर रिफ्लेक्शन ऑफ द सेम ट्री बिलो द ट्री इटसेल्फ। वो जैसे ही थोड़ा आगे जाएगा ना, एंगल चेंज हो जाएगा, एंड एंगल चेंज हो जाने से अब वो उसको रिफ्लेक्शन नजर नहीं आएगा, अरे क्या हो गया यार, मिराज हो गया। ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मिक्स है, एंड दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एयर ड्यूरिंग हॉट समर आफ्टरनून्स और डेजर्ट रीजन्स एयर का रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस अलग अलग होता है, एंड thus रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड अ मिराज। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस? नो? ओके, the second wala is diamonds. Oh, who does not love diamonds? Diamonds are forever. डायमंड तो देखा होगा, बहुत स्पार्कलिंग होता है, बहुत मजा आता है। आपको पता है डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस ऑन अर्थ। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है करीबन 2.42, डेंसेस्ट, एंड एज अ रिजल्ट उसका क्रिटिकल एंगल is nearly 24 degree 41 minutes, something like this. In short, if light enters the diamond at an angle greater than 24 degree, which is easy, तो वो लाइट अंदर इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, एंड डायमंड के बहुत सारे फेसेस होते हैं, बहुत सारे कट्स होते हैं, वो अंदर 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 घूमती रहेगी, तो वो लाइट उस डायमंड में ज्यादा समय तक टिकेगी। एक साधारण नॉर्मल ग्लास का शीट पकड़ लो, लाइट आई निकल गई, इट इज नॉट स्पेंडिंग टू मच टाइम इनसाइड, एज अ रिजल्ट ग्लास अपीयर्स व्हाट, ट्रांसपेरेंट। बट इनसाइड अ डायमंड द लाइट स्पेंड्स टू मच टाइम, बहुत सारे फेसेस से इंटरनल रिफ्लेक्ट होते रहना, एंड एज अ रिजल्ट जब भी आप डायमंड देखोगे ना, आपको चमकता हुआ नजर आएगा, इट विल अपीयर स्पार्कलिंग, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम there is a lot of light which is moving inside the diamond through internal reflections. And रत्न कलाकार होते हैं, डायमंड पॉलिशर्स होते हैं, वो स्पेशल केयर लेते हैं उस डायमंड को पॉलिश करने में, उसके फेसेस को पॉलिश करने में, कि इस तरह दूं कि लाइट अंदर लंबे टाइम तक टिकी रहे। आपको दिखाना है ना दुनिया भर का, मेरे को डायमंड दिया इसने, वो डायमंड चमकना चाहिए भाई, तभी तो उस पैसे की वैल्यू है। तो वो चमकेगा तभी जब उसमें बहुत सारे फेसेस सही एंगल पे काटे होंगे। दैट इज द स्किल ऑफ अ डायमंड पॉलिशर। और हमारे गुजरात में काफी डायमंड पॉलिशर्स है, काफी अच्छी क्वालिटी के। और
So that is the prime reason why the diamond appears sparkling when it is seen from outside, because light spends a lot of time inside if it is incident at an angle greater than 24 degrees. Fair enough. So this is the reason. So total internal reflection is the reason behind the sparkling of that diamond. Let us move on. इसमें कोई शक किसी को? नहीं? अच्छा, फिर कुछ प्रिज्म्स के बारे में भी बात है. लाइट बेंडिंग प्रिज्म्स, नंबर 3 बोलता हूं इसको. तुमको लाइट को बेंड करवाना है, लाइट बेंडिंग प्रिज्म्स. तो मेरे पास एक ठो प्रिज्म है. कैसा प्रिज्म है? अच्छा प्रिज्म है. अच्छा, तो ये अच्छा प्रिज्म नहीं है, ये गंदा प्रिज्म है. इसको अच्छा कैसे करें? इसको थोड़ा टेढ़ा कर देते तो अच्छा लगेगा. अब ठीक है. लाइट अभी आएगी. आएगी, टेंशन मत लो. ये लाइट आई और यहां पे आके इस तरह एंगल एडजस्ट किया है कि इसका इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा टॉइंग. फिर यहां से दूसरी आई, वो यहां से होगी टॉइंग. सो सपोज यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, तो उसका तुमको यहां इमेज मिलेगा. वाव, ये बी, ये ए, बी डैश ए डैश, ऑलराइट. ये ए डैश, ये बी डैश. सो इस तरह लाइट की बीम्स को बेंड करने का काम होता है. ऐसे और एक आध दो एग्जांपल्स भी हैं हमारे पास जिसमें इमेज को इन्वर्ट करने का भी काम किया जाता है. यू कैन लुक इनसाइड द टेक्स्ट बुक, काफी अच्छे अच्छे डायग्राम्स दिए हुए हैं. तो वो लाइट को इन्वर्ट करने का काम करते हैं. ट्रेपीजॉइडल भी इमेजेस हैं, so you can check them out. If you want me to check them out, okay, I'll draw them for you. No problems, I don't have no problems. But इसमें कुछ खास है नहीं. सबसे इंपॉर्टेंट एक ही बात है कि ये जो है इसको ये इमेज इन्वर्ट करने का भी काम कर सकते हैं और ये इमेज ऑब्टेन करवाने का भी काम कर सकते हैं. यू कैन सी देम ऑन पेज नंबर 322. ऑलराइट, 322 पेज नंबर पे इसी टाइप के एंगल्स नजर आएंगे आपको. एंड एक और डायग्राम में आपको दिखा दूं. ये गंदा डायग्राम है. अरे 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 अरे. ओके, तो इस तरह का ये प्रिज्म है. उसका कोई एंगल दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ है, तंबूरा दिया हुआ है. सो सपोज यहां से एक रे आई है, यो जाएगी और इस तरह बाहर आएगी. अगर एक और रे आई है, वो यो आएगी और इस तरह आएगी बाहर. सो अगर दिस इज योर ऑब्जेक्ट ए बी, तो दिस विल बी योर इमेज. आप देख रहे हैं ये कौन सा है? बी. तो दिस विल बी बी डैश ए डैश. कैन यू सी? आपको एक ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज मिल गई. तो इस तरह के भी प्रिज्म्स होते हैं. बस इंपॉर्टेंट यही है कि यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए. कैन यू सी? ये आया, ये एक्चुअली ग्लास से एयर में जा सकता था, बट इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है, तो वो बेंड हो गया. यहां पे भी वही हुआ और बेंड होके वापस आया. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. Finally, the most important use, ladies and gentlemen, you might have seen this use. It's called an optical fiber. Have you ever heard about an optical fiber? आजकल कम्युनिकेशन सिनारियो में, केबल टीवी में कम्युनिकेशन, यहां से कहीं दूर डेटा पहुंचाना है, ये सब ऑप्टिकल फाइबर्स के जरिए हो रहा है. सो द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज ऑप्टिकल फाइबर्स. इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन. इट्स एक्चुअली अ ग्लास ट्यूब, कांच से बनी हुई ट्यूब है सर. कांच की नल्ली बोल सकते हैं इसको. रिमेंबर, इट इज नॉट अ हॉलो पाइप. इट इज नॉट अ हॉलो पाइप, इट इज एंटायरली मेड अप ऑफ ग्लास. ऑलराइट,
एंड सिलिका ग्लास वगैरह भी यूज करते हैं, अच्छे होते हैं वो काम के लिए। क्या कर रहे हैं हम यहां से इस तरह रे डाल रहे हैं अंदर, यहां से वो रिफ्रैक्शन होता है, वो अंदर जाती है एंड यहां पे it will suffer, you know, this angle is greater than critical angle, it will suffer TIR, total internal reflection। यहां भी वही total internal reflection and ऐसा करके वो जुक 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 लाइट एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है विथ ऑफ कोर्स द स्पीड ऑफ लाइट। तुम ये ऑप्टिकल सिग्नल जो है, यू नो, आप अपना स्पीच सिग्नल कन्वर्ट कर सकते हैं, डेटा सिग्नल कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो सिग्नल कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू स्पीच सिग्नल्स। सो ऑडियो वीडियो डेटा एक्सेट्रा signals are converted into optical signals, मतलब light converted into light, optical signals मतलब light using transducers। You know, these are devices that convert one type of energy into another type of energy। तो ट्रांसड्यूसर्स के जरिए आप इसको कन्वर्ट किए, फिर इनपुट कर दिए इस तरह कि ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो तो चिक चौक करके वो एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचेगा। सो डेटा ट्रेवल्स, यू नो, फ्रॉम वन एंड टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये जो है ना, इसे कहते हैं कोर एंड इसके ऊपर मैं एक प्रोटेक्टिव कवरिंग लगा देता हूं एंड दिस प्रोटेक्टिव कवरिंग इज कॉल्ड cladding, and I take care that the refractive index of core is kept greater than the refractive index of the cladding, ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सके। एंड ये क्लैडिंग जो है ना, वो जैकेट है जो बाहर की गंदगी, डस्ट, डर्ट, इंप्योरिटीज को अंदर आने से रोकेगा। They are used in optical fibers, are used in communication, and if you know, एंडोस्कोपी नाम की एक मेडिकल प्रोसीजर होती है जिसमें मुंह के जरिए एक पाइप डाली जाती है अंदर, एंड सपोज आपके इंटरनल ऑर्गन्स में, स्टमक वगैरह में कोई दिक्कत है तो वो ऊपर आगे कैमरा होता है, वो अंदर जाता है, इट सेंड्स लाइट सिग्नल्स और आप रियल टाइम में देख सकते हैं, तो कोई भी दिक्कत है वो दिखाई दे सकता है। कम्युनिकेशन एंडोस्कोपी बोलते हैं इसको, एक्सेट्रा। एंड बहुत टाइम पहले डेकोरेटिव लाइटिंग्स में भी इसका इस्तेमाल होता है। आई एम श्योर यू माइट हैव सीन, यू नो, नीचे एक लैंप होता है और बहुत सारे ऐसे फूल के पत्तों की तरह ये पाइप्स निकलते हैं, एंड जब लाइट चालू करते हो तो पाइप के एंड पे आपको एक डॉट नजर आता है लाइट का। सो दैट इज ऑल्सो ऑप्टिकल फाइबर्स। बहुत टाइम पहले ये हेलमेट चार रास्ते पे सिग्नल के राइट लेफ्ट हैंड साइड पे एक बड़ा सा यू नो ऑप्टिकल फाइबर का झाड़ बनाया था उन्होंने। नीचे लैंप था और बाहर ऐसे पतले पतले यू नो ये ऑप्टिकल फाइबर्स आते थे और शाम को तो बहुत अच्छा नजारा होता था। फिर धीरे धीरे पब्लिक एक एक ऑप्टिकल फाइबर निकाल के ले गई घर पे, फिर कॉरपोरेशन को पता चला पब्लिक लेके जा रही है तो उन्होंने वो झाड़ी निकाल दिया, तो ऑप्टिकल फाइबर देखना भी अभी खत्म हो गया। बट आई थिंक 10-12 साल पहले वो था, आप लोग शायद पैदा ही हुए थे बस, तो बहुत बढ़िया था, वो पब्लिक को दिखा रहे थे यू नो डेकोरेटिव लाइटिंग किस तरह यूज होती है, हम घर में भी कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू नो ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क। हैव अ लुक। कोई शक ऑप्टिकल फाइबर्स में? मैं लिख दूं यहां पे, क्लैडिंग इज अ प्रोटेक्टिव शील्ड, प्रोटेक्टिव स्किन दैट प्रोटेक्ट्स द कोर फ्रॉम डस्ट, dirt, impurities, etc. Okay, I'm going to take this off now. ओके पीपल, और आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज का लास्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन ड्यू टू अ स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस। यू नो दिस आइडिया
इज मिडवे बिटवीन मिरर्स एंड लेंसेज। तो इसके बाद का टॉपिक आएगा लेंसेज, हमने सीखा मिरर्स, तो इन दोनों के मध्य का टॉपिक है ये रिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस। एज यू कैन सी दिस इज अ स्फेरिकली कर्व्ड सरफेस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट अस कॉल इट N2 एंड ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 वाला मीडियम। अब क्या हो रहा है, आई हैव दिस ऑब्जेक्ट हियर एंड दिस ऑब्जेक्ट, इसकी ये हो गई इंसिडेंट रे, इट्स लुकिंग गुड, लुकिंग ओके, आई शुडंट हेजिटेट, गुड। सो ये उसकी इसकी उसकी और किसकी यारादा ओके, ये इस पॉइंट पे इंसिडेंट हो रहा है एंड मैं यहां से नॉर्मल बना दूं पहले, नॉर्मल, ये नॉर्मल है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड लेट अस कॉल दिस नॉर्मल। तो दिस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, आई विल कॉल इट आई एंड ये लाइट गई, दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड यहां से रिफ्रैक्शन हुआ और यहां पे मुझे मिली अपनी इमेज एंड द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दिस आई विल कॉल इट आर। ओके, ये मस्त आर है, फर्स्ट क्लास। ओके, अब मैं पहले तो सारे डिस्टेंसेस मार्क कर लूं। अच्छा भाई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लाइट, डोंट फॉरगेट दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, सब कुछ m से मेजर किया जा रहा है एंड ये n बोलते हैं इसको, इस पॉइंट को n बोलते हैं, nm लाइक नियरली स्ट्रेट ही पकड़ लो। यहां से इमेज का डिस्टेंस है v एंड यहां से m से c इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड नाउ लेट अस स्टार्ट। नाउ look at angle NOM from the figure. Tan NOM is NM by OM, so angle NOM is NM by OM, equation number 1. Similarly NCM, angle NCM, tan बोलना है tan बोलो, जो भी बोलना है बोलो, doesn't matter, NM by CM and NIM, लाइन मर गई, angle NIM will be NM by IM, as simple as it looks. Okay, अब क्या सर? Okay, अब कुछ नहीं, अब स्नेहल मतलब स्नेल्स लॉ by Snell's law I think everybody knows. Vishnu, what was the modified form of Snell's law? N1 sin theta 1 is N2 sin theta 2. यहां पे थीटा 1 कितना है? Isn't it I? And theta 2 कितना है? It is R. So N1 sin I is N2 sin R. As angles are small, ये हमेशा का लफड़ा है अपना. Let sin I nearly equal to I and sin R nearly equal to R. Okay, so N1 into I is N2 into R. I'm going to put things out here. Okay, this is going to be my important equation. Now, you know exterior angle theorem? But nobody is saying nothing here, sir. What is exterior angle theorem? Acha, forget exterior angle theorem. You know the measure of all angles of a triangle is 180 degrees. In triangle NOC, उन्होंने तो सीधा लिख दिया, पर मुझे लगता है मैं लिख नहीं पा रहा हूं सीधा, क्योंकि आप लोग कोई मेरे को हाँ नहीं बोल रहे कि एक्सटीरियर एंगल अपने को पता है. डू यू नो आई इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल एनओसी? नहीं जाने दो, ओके फॉरगेट इट. ओके, ट्राइंगल एनओसी में एंगल एनओएम प्लस एंगल एनसीएम, एंगल एनओएम प्लस एंगल एनसीएम प्लस एंगल ओएनसी. डू यू अग्री इट इज 180?
NOM, NCM plus ONC. Isn't that 180? Also, do you see this is a linear pair? Angle I plus angle ONC is also 180 degree. ये भी 180 है, ये भी 180 है. Can I equate these? Therefore, I plus angle ONC is angle NOM plus angle NCM plus angle ONC. ONC cut. तो क्या मिल गया? I is angle NOM plus angle NCM. एक्चुअली इसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बट आप सीधा ही लिख सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं. मेरे को सब रोकते हैं. ऐसा कैसे लिख रहे हो भला? अच्छा भाई, NOM याद रखना NM by OM, NCM याद रखना NM by CM. ओके, उसके बाद मैं R को इंक्लूड करना चाहता हूं अपने काम में. मैं इसको सबको उड़ा रहा हूं मैं. कैन एनीवन अलाउ मी टू इंक्लूड R? कोई बता सकता है किस तरह करूं मैं ये? नहीं? ओके. इन ट्रायंगल, डोंट वरी, मैं हूं ना आपके साथ. आप डेरिवेशन में सीधा इन ट्रायंगल NOC I इज इक्वल टू सीधा लिख सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कह सकते हैं इसको. इन ट्रायंगल INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस. डू यू अग्री? R प्लस NIC, R प्लस एंगल NIM बोलते हैं ना उसको, NIM. ओके, प्लस NCI, वही ना, is equal to 180. Same old here. Same. Do you agree? NCM plus angle NCI is 180. ये दोनों 180 है. तो सर क्या करे सर? तुमको दिक्कत ना हो तो NCI उड़ा दूं? है नहीं? इन दोनों में से? थैंक्स बड़ी, थैंक्स. एक तू ही है जो मेरी हालत समझ है. एंड एज अ रिजल्ट R कितना मिला श्रीमान? Isn't it angle NCM माइनस एंगल NIM? चलो भाई, अच्छा हुआ R भी मिल गया, I भी मिल गया. दोनों को उठा के, इसको और इसको उठा के डुप करके इसमें डाल देंगे. तो क्या बचा? आप लोग पहले बोले थे इतने में हो गया होता ना चचा. ओके, पुट इन, ये कौन सा नंबर था? 2 था ना कि क्या था? पुट दीज, पुट 3 and 4 इन इक्वेशन 2. तो N1I की जगह ये NOM क्या है? NM by OM प्लस NCM क्या है? NM by CM इज इक्वल टू N2. नहीं, सही जा रहा हूं मैं? हाँ, ये N1 है. हाउ मच इज NCM? NM by CM minus NIM, NM by IM. NM out jo. So N1 by OM plus N1 by CM is N2 by CM minus N2 by IM. तुम बोलेगे सर वैल्यूज ठूस दे. भाई कितना है OM? U. कितना है CM? R. कितना है IM? V. तो डालो फिर. अच्छा एक सेकेंड, मेरे पास CM वाले हैं, तो ये इसको यहां पे ले आता हूं. N1 by OM plus N2 by IM is N2 minus N1 by CM. ओके, एंड मैं अब आंसर फाइनल इक्वेशन के एकदम करीब हूं, एकदम करीब, इतना करीब की खुशबू आ रही है उसकी. Here OM is U, IM is V and CM is R. So what do you get? Sir, N1 by U plus N2 by V is N2 minus N1 by R. Sir, final equation? No. साइन कन्वेंशन तो लगाया नहीं. तो अब सारी गाड़ियां कहां से जाएंगी? M से. पहले P से जाती थी, अब M से जा रही है. M से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करने के लिए O तक जाना है. कैसे जाना है? ऐसे. तो aren't you going opposite to the direction of light? तो U is minus U. very good. Here
by sign convention, u is minus u. Anybody can tell me something about v? इमेज डिस्टेंस मेजर करने के लिए m से i तक जाना पड़ेगा, ऐसे प्लस, एंड एनीबॉडी कैन टेल मी रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए m से c तक जाना पड़ेगा इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट. तो जैसे इसमें डाला आंसर झिंगा लाला, माइनस n1 बाई यू प्लस n2 बाई v इज n2 माइनस n1 बाय r. माय गॉड, क्या इक्वेशन आया बाप. दिस इज द इक्वेशन फॉर रिफ्रैक्शन ड्यू टू अ spherically curved surface. Okay, refraction due to spherically curved surface. Minus n1 by u plus n2 by v is n2 minus n1 by r. याद रखें, here n1 is the refractive index of medium in which object is kept. I think these will be the two most important things. And n2 is the refractive index of the medium in which image is obtained. So n1 is the refractive index of the medium in which object is kept, n2 is the refractive index of the medium in which image is obtained, and r is the radius of curvature. I want you to look at illustration number 5, the last thing for the day. Number 6 rather. I will use the same data, I will use the same idea. मैं सब कुछ उड़ा रहा हूं, डायग्राम रख रहा हूं सिर्फ. सो आप इसको देख लीजिए. Okay, I'll take this off. A very simplistic numerical. I didn't want to let go, so I'm sure you are looking. What does it say? But don't forget the sign convention. ना कुछ भी हो जाए जिंदगी में, साइन कन्वेंशन का साथ मत छोड़ना. Illustration 9.6, and it says light from a point source in air. Air में है मतलब n1 कितना है 1. Falls on a spherical glass surface मतलब n2 कितना है 1.5, ये वाला. Radius of curvature r is 20 centimeter. Okay. The distance of the light source from the glass surface u is 100 centi. कहाँ पे मिलेगी इमेज? Easy peasy and Japanesey. Okay, सबसे पहली बात, we know, जब भी हमको पता नहीं होता we write we know. Minus n1 by u plus n2 by v is n2 minus n1 by r. As I said, u हमेशा माइनस होता है. Here u is minus 100 centi, and because it's a convex surface, r is positive, तो r is plus 20. तो मैं लगा रहा हूं n1 की जगह 1, तो minus 1 by minus 100 plus n2 की जगह 1.5, 1.5 by v, n2 की जगह 1.5, n1 की जगह 1, तो 1.5 minus 1, और r की जगह plus 20. ओके, आई एम गुड, ये कट गया. सो 1 by 100 प्लस 1.5 by v is 0.5 by 20. Well, I'm sure everybody knows 0.5 by 20 is 1 by 40. ये 1 by 100 को यहां ले आए तो minus 1 by 100. तो क्या मिलेगा मुझे नीचे? 100 into 40 and 100 minus 40 which will be how much? 60. मुझे v चाहिए, तो v यहां चला जाएगा, ये सब कुछ यहां आ जाएगा. 1.5 into 100 into 40 डिवाइड बाय 60. Isn't 1.5 into 40 60? कट गया कट गया कट गया. सो तुम्हारा फाइनल v क्या मिला? प्लस 100 सेंटीमीटर. सो इमेज इज ऑब्टेन्ड at a distance of 100 centimeter from this point m in the direction of light. As v is positive, image is obtained at 100 centimeter from point m
in the direction of propagation of light. I want you to understand this. I want you to do it. Next time जब हम मिलेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराऊंगा, एकदम होश उड़ा देने वाला, एंड उसके बाद लेंसेज के ऊपर प्रयाण करेंगे. थैंक यू सो मच. बी पॉजिटिव, स्टे नेगेटिव. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.